Now we are going to prove Coulomb's law from Gauss theorem. Coulomb's law क्या होता है? Which gives the force between two charges that is equal to 1 over 4 pi psi naught q1 q2 divided by r square. Clear? तो इसके लिए we have to take two charges that is your q1 and q2 and the distance between both of them is your smaller. So before we going from the derivation, we have some basic knowledge regarding this derivation, and that is what? If I ask you what will be the electric field of q1 at point P, your answer should be it will be 1 over 4 pi epsilon naught q1 divided by r square, or you can apply the basic formula for getting electric field of q1 at point P, and that is nothing but it's your E is equal to force divided by charge. Electric field is what? Force divided by charge. कौन सा चार्ज? जिस पर ये चार्ज फोर्स लगाएगा, किस पर लगाएगा? Q2 पर लगाएगा, तो इसके नीचे कौन सा चार्ज रखना पड़ेगा? Q2. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 at P is your E, where E is equal to F divided by Q2. F is equal to E Q2 आ जाएगा. That is said to be your equation number 1. Now we are going to use the Gauss theorem. So for using the Gauss theorem, you need to draw a Gaussian closed surface, because Gauss theorem is not applicable without a closed surface. So we have to draw an appropriate closed surface. So here the closed surface is a sphere of radius small r. तो एक स्फीयर स्मॉलर रेडियस का कंप्लीट स्फीयर क्या कर लिया अपन ने? ड्रॉ कर लिया. Since this sphere is drawn for use of Gauss theorem, so that's why it is said to be the Gaussian surface. Clear? तो अगर ये एक स्फीयर है तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से, स्फीयर इज अ क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस से जो भी चार्ज पास होता है, सॉरी जो भी फ्लक्स पास होता है, वो उस क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज का कितने टाइम्स होता है? 1/ε0 टाइम्स होता है. तो इट मीन्स फ्रॉम गॉस थ्योरम फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड. अब इस सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज कौन सा है? Q1. Q2 is on the surface, it is not inside the surface. That's why Q2 is not taken over here. So phi is equal to Q1 divided by epsilon naught. This is the flux which is obtained from the Coulomb's Gauss theorem. But we have a traditional method for getting the that is your flux. So electric flux is what? It is said to be the surface integral of electric field over a closed surface. Clear? So what is over here? So you can calculate flux by this formula. Phi is equal to E dot ds. Clear? But before using this formula, you should know the angle between electric field and area vector. So how to get the angle between electric field and area vector? So this is the area vector and this is the surface. You have to cut a small area on this surface, and this is a small area, that is your how much? It's your ds. And ds vector is what? The vector which is always perpendicular outside the surface. तो इसका ds vector किधर होगा आपका? ये इधर की ओर होगा. और ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज. इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी आपकी? ये रेडियली आउटवर्ड होगी. तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज वेल एज एरिया वेक्टर्स आर बोथ आर पैरेलल ओवर हियर, so the angle between them should be 0 degree. That's why I have put the value of theta as 0, because on opening it, a dot b is equal to ab cos theta. Theta should be 0, cos 0 is your 1. You will get e ds. E को कॉमन ले लिया and this बचा. Whenever the ds अकेले बसता है सरफेस इंटीग्रल के अंदर, तो आपको उस सरफेस का टोटल एरिया रखना पड़ता है जिस सरफेस पर आपने ds कट किया. तो ये जो ds कट किया अपन ने स्फेरिकल सरफेस पर रखा है. इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 4 pi r square. क्लियर? So again we have calculated the flux by our traditional method, and here is the flux due to the Gauss theorem. Both the flux should be equal होना चाहिए. तो इन्हीं को इक्वेशन सेकंड और थर्ड से मैंने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया. तो Q1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया? E into 4 pi r square. From here we have calculated the E 1 over 4 pi epsilon naught Q1 divided by r square. इसका मतलब अपन ने गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस चार्ज की यहाँ पर ये प्रूफ कर दी. कितनी होती है? 1 over 4 pi epsilon naught Q1 divided by r square होती है. फिर अभी कम ऑन द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर में E इंटू Q2, अगर E की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इसका मतलब E में अगर Q2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल आएगा? फोर्स निकल आएगा. तो E में Q2 का मल्टीप्लाई कर दो तो Q1 इंटू Q2 कितना हो जाएगा? फोर्स आपका ये 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square, and this is the proof of Coulomb's law with the help of Gauss theorem. Clear? Now we are going to study about the charge distribution. Charge distribution means there are how many ways to distribute a charge on the surfaces. Clear? So we have seen three types of object over here. The linear object is what? The object having only length. इसके पास ना तो एरिया होगा ना तो वॉल्यूम होगा. The area distribution, area ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जिसके पास एरिया होता है, प्रॉपर लेंथ होती है, विड्थ होती है. क्लियर? और वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास वॉल्यूम होगा, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीजें होंगी. क्लियर? तो सपोज ये एक रॉड है जिसके पास क्या है? केवल लेंथ है. अगर इसके पूरे में चार्ज इस तरीके से पूरे में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज हम बहुत ही कम अप्रोच करेंगे. यहाँ पर हमें एक डेटा दिया रहेगा, कहेगा
इस रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। क्लियर। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी हमेशा उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगी जिस ऑब्जेक्ट के पास केवल क्या होगी, लेंथ होगी और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है इसका मतलब ये होता है कि ये क्वांटिटी हमें बताता है कि इसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, दैट इज योर चार्ज पर यूनिट लेंथ इज सेड टू बी योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये बात समझ में आ रही है। सिमिलरली इफ द ऑब्जेक्ट हैव एरिया, अगर ऑब्जेक्ट के पास एरिया है तो पूरे एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमसे कोई कहे भाई यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फॉर इट we have the surface charge density. The surface charge density is represented by sigma, which is called your charge per unit charge per unit area. Clear? So surface charge density is what? That is your charge per unit area. And this is your volumetric distribution. Volumetric distribution is the distribution of charge on a cubical surface or the surface having volume only. Clear? So here the volumetric charge distribution is what? Charge पूरे में फैला हुआ है. If somebody asked you what is the charge per unit volume, it is represented by volumetric charge density, that is your sigma, that is said to be your charge per unit volume. So overall the main purpose of this slide is you to tell about the different charge densities. So there are three possible charge densities for linear object, linear charge density lambda, charge per unit length. For object having area is we have to use surface charge density sigma, that is your charge per unit area. And for volumetric distribution of the charges we have to use volumetric charge density, that is your rho, that is your charge per unit volume. So it is not in your syllabus, ये आपके syllabus में नहीं है, आपके syllabus में दो ही है, that is your linear distribution and क्या आपका ये area distribution है. Okay. Now we are moving towards the application of Gauss theorem. And in the application of Gauss theorem, we have to perform 3 or 4 derivations in which we have to use Gauss theorem. Clear? So now we have a case, that is, he is asking about what is the electric field of infinitely long charged rod. Clear? कि सपोज ये हमारे पास एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रॉड है और हमसे पूछ रहा है कि भाई ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। यहाँ पर देखो मैंने कंटिन्यूअस ड्रॉ किया या डॉटेड कर दिया। अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रॉड है तो हमसे पूछ सकता है कि भाई ये बताओ कि इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। क्लियर? तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये, तो यहाँ पर एप्लीकेशन करना है गॉस थ्योरम का। अगर गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करना है तो हमें एक प्रॉपर गॉसियन सरफेस क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर जो प्रॉपर गॉसियन सरफेस है वो कुछ इस तरीके से हमसे किस पॉइंट पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है, दैट इज योर पी पॉइंट पर पूछ रहा हूँ। पी पॉइंट डिस्टेंस कितनी है आपकी, यहाँ पर ये स्मॉल आर है। तो अपन एक सिलेंडर यहाँ ड्रॉ करेंगे और उस सिलेंडर की जो रेडियस रखेंगे वो कितनी रखेंगे आप, ये आर रखेंगे। मतलब क्या है आपका कुछ इस तरीके से, सपोज पी पॉइंट आपका यहाँ पर ये और ये कितना डिस्टेंस है आपका ये, दैट इज योर आर। तो अपन एक सिलेंडर यहाँ पर क्या करते हैं आपका ये ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। क्लियर? एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ की जस्ट फॉर यूज ऑफ योर गॉस थ्योरम। ठीक, डन। द सिलेंडर जो भी है उसकी रेडियस कितनी है आपकी, स्मॉल आर। क्लियर? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उतनी रेडियस का ड्रॉ कर लिया सिलेंडर अपन ने। और इसकी लेंथ ले लेते हैं, सपोज इस पी पॉइंट को हटा रहा हूं मैं, और इस सिलेंडर की लेंथ कितनी ले लेते हैं, सपोज ये एल है। द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच, इट्स योर एल। बहुत ध्यान से देखना, ये डेरिवेशन शुरुआत में बहुत ही टफ है। क्लियर? तो इधर देखो ध्यान से है क्या ये सबसे पहले दिस इज लाइक दिस कि सपोज आपका ये जो मार्कर है दैट इज योर सिलेंडर है, सिलेंडर रखा हुआ। इस मार्कर के अंदर भी एक वायर, जैसे पेन ले लो आप, रिफिल वाला पेन, तो पेन की रिफिल है ये। क्लियर? और पेन की बॉडी है पूरा ये सिलेंडर जो अपन ने ड्रॉ किया। तो रिफिल तो बाहर भी रहती है आपकी इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से अपन ने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिया। तो दैट इज सेड टू बी योर गॉसियन सरफेस। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान समझना इसको ही। अब यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल श्योर है कि ये रॉड कैसी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किससे होती है, उससे दूर होती है, इधर भी इधर भी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी पूछे, किसी पॉइंट पर पूछे, तो हम ये तो नहीं बता सकते कितनी, लेकिन डायरेक्शन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी। ये बात समझ में आ रही है। और एक सिलेंडर के पास बच्चा दो तरीके की सरफेस होती है। ये जो सरफेस है कंप्लीटली दैट इज सेड टू बी द कर्व्ड सरफेस, और इस सरफेस को बोलते हैं प्लेन सरफेस। ये भी क्या बोलते हैं इसको, प्लेन सरफेस। तो एक सिलेंडर के पास एक कंप्लीट कर्व सरफेस होती है और दो कौन सी सरफेस होती है आपकी, प्लेन सरफेस होती है। क्लियर? तो वन सिलेंडर कंटेन्स वन कर्व सरफेस एज वेल एज टू प्लेन सरफेस। ठीक, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों पास होगा, क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी तो हमें ये काउंट करना है कि कितनी लाइंस ऐसी जो इसको 90 डिग्री पर क्रॉस करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉसिंग टू अ क्लोज सरफेस
नॉर्मली, ये बात समझ में आया। तो उसके लिए अपन के पास एक ट्रेडिशनल मेथड है। तो ये कौन सी सरफेस है, कर्व सरफेस, और ये कौन सी सरफेस है, आपकी प्लेन सरफेस है। तो अपन कर्व सरफेस पर एक छोटा सा एरिया कट करते हैं। द एरिया इज हाउ मच, ds। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड हो गई। और कर्व सरफेस पर आप इधर भी ड्रॉप कट कर सकते हो एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा आपका, ये दैट इज जो परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा। अब चाहे इस एरिया वेक्टर पर देखो तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है आपकी, ये इधर की ओर है। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर है। इसका मतलब हम कर्व सरफेस में कहीं पर भी रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना मिलने वाला है आपको, 0 डिग्री मिलना है। ये बात समझ में आ रहा है। बट इफ यू गो फॉर द प्लेन सरफेस, तो दैट इज द एरिया, आपने ds कट किया तो सिलेंडर इस तरीके से रखा, यहाँ कट किया तो एरिया वेक्टर बाहर बाहर, प्लेन पर कट करो तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा यहाँ पर ही। तो दैट इज योर एरिया वेक्टर ही। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पॉइंट पर वो कैसे होगी, हमेशा इस पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी। तो हियर इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली आप यहाँ भी कट कर सकते हो, आप यहाँ पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर कट करो, एरिया कट करो, इसका एरिया वेक्टर कैसा, परपेंडिकुलर आउटसाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगी आपकी, ये इधर की ओर होगी। कुल मिला के अगर हम प्लेन सरफेस पर है तो प्लेन सरफेस पर एंगल कितना होगा आपका, ये 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, पहले हम ये निकाले कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास हुआ, फिर ये निकाले प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हुआ। दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी सरफेस से पास होने वाला क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो सेम यही करने वाले हैं आप, ये दैट इज योर फ्लक्स फ्रॉम कर्व सरफेस। सबसे पहले ये देखेंगे कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स आपका यहाँ पर ये पास हुआ है। तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास हुआ, तो दैट इज योर फाई कर्व सरफेस इज इक्वल टू सिंपल सा वही फॉर्मूला E.ds, दैट इज योर क्लोज सरफेस। और ये एंगल कितना है कर्व सरफेस पर, हमेशा चाहे यहाँ रहो चाहे यहाँ रहो, एंगल कितना है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल है। तो दैट इज योर, ये कितना हो जाएगा, E.ds cos 0 हो गया 1, E को क्या कर लिया अपन ने, बाहर ले लिया। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, ये ds आ गया ये। और ये जो ds आ रहा है ये जब सरफेस इंटीग्रल के अंदर होगा तो उस सरफेस का पूरा एरिया रखना पड़ेगा जिस सरफेस पर आपने कट किया है। तो बात कर रहे हैं कर्व सरफेस का, कर्व सरफेस का टोटल एरिया कितना होता है ये, तो कर्व सरफेस का सिलेंडर का टोटल एरिया होता है आपका ये, ई तो पहले से ही है, दैट इज योर 2πrl। क्लास 10th के मेंसुरेशन में आपने इसको पढ़ रखा है। क्लियर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, कर्व सरफेस का निकाल लिया। फिर कहां से निकालेंगे अपन ये, दैट इज योर फ्लक्स फ्रॉम प्लेन सरफेस। फ्लक्स फ्रॉम प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये phi p इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका ये E.ds। और चूंकि प्लेन सरफेस पर चाहे यहाँ रहो चाहे यहाँ रहो, एंगल हमेशा कितना है आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर E.ds cos 90। cos 90 कितना होता है, 0। तो प्लेन सरफेस का फ्लक्स कितना आ गया आपका, ये 0 आ गया। तो टोटल फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये, तो दैट इज योर टोटल फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन सरफेस कितना आ गया आपका ये, तो ये कितना आ जाएगा आपको ये, दैट इज योर phi e इज इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस। क्योंकि एक कर्व और कितने प्लेन सरफेस होते हैं आपके पास, 2 प्लेन सरफेस होते हैं, इसलिए प्लेन सरफेस को 2 बार लिखना पड़ेगा। इसकी और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। कर्व सरफेस का कितना, E इंटू 2πrl। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया आपका ये, दैट इज योर E इंटू कितना आ गया, 2πrl। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया अभी अपने ये ट्रेडिशनल मेथड से। अभी अपन ने यहाँ पर गॉस थ्योरम का यूज नहीं किया है, अब गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये बताओ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना इंक्लोज्ड है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर रॉड की कितनी लेंथ इंक्लोज्ड है, L। और एक चीज ये दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर ये जो चार्ज रॉड थी, ये दिया हुआ है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। ये हमें दिया हुआ है, क्लियर, कि भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है इसका, L है। हमें ये निकालना है कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, क्लियर। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है आपका ये, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ये। तो चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ये, लैम्डा इंटू लेंथ हो जाएगा, क्लियर। तो अगर कोई पूछे सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, तो इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी लेंथ की रॉड होगी। तो अगर लेंथ की रॉड यहाँ पर L है तो L लेंथ में कितना चार्ज है, तो सिंपल सा जो चार्ज इंक्लोज्ड निकल के आएगा इस सिलेंडर के अंदर वो कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू L इज द चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड द सिलेंडर। तो फिर यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है आपको, ये गॉस थ्योरम का यूज कर देना। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम
क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी है आपकी, लैम्डा एल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। इट इज योर इक्वेशन नंबर क्या आ गई, थर्ड आ गई। इक्वेशन नंबर थर्ड से भी फ्लक्स निकला, इक्वेशन नंबर सेकंड से भी फ्लक्स निकला है, दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। किसकी, इस रॉड की। तो कैसे आएगी, देखो ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों को मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर ये इक्वेट करने वाला हूं। तो अगर अपन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू कितना है आपका 2 पाई आर एल है। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा एल, अच्छा एल से एल दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ई इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा ये, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज। क्लियर। और यहाँ पर देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन चार्ज होती है वो होती है 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन चार्ज। जितना दूर पॉइंट लेते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी क्या होती जाएगी आपकी, कम होती जाएगी। सो दिस इज द डेरिवेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन। और इस डेरिवेशन में क्या किया अपन ने, सबसे पहले फ्लक्स निकाला एक ट्रेडिशनल मेथड से, फिर उसी फ्लक्स को अपन ने कैलकुलेट किया है आपका एक नॉर्मल मेथड से, गॉस थ्योरम से, और दोनों को इक्वेट कर दिया है। थैंक यू। The next application of Gauss theorem is your electric field of long charge sheet. Clear? Long charge sheet का मतलब क्या है हमारे पास, ये सपोज हमारे पास ये इस तरीके से क्या है आपकी एक लॉन्ग सीट। क्लियर। इस पर पूरे में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और आपके सामने इस तरीके से रखी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है। आपसे कोई पूछे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव चार्ज दूर होगी, पॉजिटिव चार्जेस से क्या होगी, दूर होगी। क्लियर। इस तरीके से एक लॉन्ग सीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है कितनी, सिग्मा। मतलब यहाँ पर ये नहीं दिया पूरे में चार्ज कितना, चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। तो अपने को यहाँ गॉसियन सरफेस लेनी थी, यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो कुछ इस तरीके से लेंगे अपन ये, डन। तो उस गॉसियन सरफेस का जो ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस का एरिया कितना ले लेते हैं अपन, कैपिटल एस अपन एज्यूम कर लेते हैं। सपोज इस गॉसियन सरफेस का प्लेन सरफेस एरिया कितना आपका, ये कैपिटल एस है, और ये इस तरीके से क्या हो गया यहाँ पर आपका ये इंसर्ट हो जाएगा। मतलब कैसा, कुछ इस तरीके से ये सीट है, इस सीट से इस मार्कर को क्या कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया, मार्कर पूरा आर पार हो गया। तो मार्कर इतने जोन से क्या हुआ आपका, ये इंसर्ट होके इस तरीके से इधर ये पूरा आर पार आपको दिखाई देगा। क्लियर, इस तरीके से ही। फिर यहाँ पर क्या है ये, अब अगर ये गॉसियन सरफेस है आपकी है, तो गॉसियन सरफेस से हमको फ्लक्स निकालना है। ये इसकी कर्व सरफेस और ये दोनों इसकी प्लेन सरफेस। सबसे पहले प्लेन सरफेस पर एक छोटा सा एरिया कट करते हैं। इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा आपका, ये राइट साइड परपेंडिकुलर आउटसाइड, ऐसे रखा है मार्कर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटसाइड, इधर वाले का परपेंडिकुलर आउटसाइड, कर्व सरफेस का परपेंडिकुलर आउटसाइड, नीचे का परपेंडिकुलर आउटसाइड। क्लियर। तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा आपका, ये दैट इज योर परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा। तो यहाँ पर एक चीज तो ये मिल रहा है कि भाई प्लेन सरफेस पर एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब प्लेन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर इधर, पॉजिटिव चार्ज से दूर इधर, तो जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। इट मींस व्हेनेवर वी आर ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, it means the angle between the electric field and area vector is how much, it's your 0 degree in both of the cases. And if we are on the curved surface, if we take a small area on the curved surface, the area vector of this will become how much, perpendicular outside, and electric field is what, in this direction, क्योंकि electric field is always away from positive charge. So theta is equal to how much, 90. तो आप कर्व सरफेस पर कहीं पर भी रहोगे, ds वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, थीटा हमेशा कितना मिलेगा आपको, 90। मतलब प्रीवियस केस का बिल्कुल अपोजिट। क्लियर। तो यहाँ पर देखो क्या है, हमने फ्लक्स निकालना, तो हम फ्लक्स पर निकालेंगे कर्व सरफेस का भी प्लेन सरफेस का, टोटल के लिए सबको ऐड कर देंगे। तो कर्व सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस के लिए लगाया ई डॉट डी एस, इसको ओपन किया ई डी एस cos 90, cos 90 होता है 0, तो कर्व सरफेस का फ्लक्स कितना हो गया, 0। क्यों 0 90 रखा, क्योंकि कर्व सरफेस पर कहीं भी रहो एंगल हमेशा कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सरफेस, जब भी हम प्लेन सरफेस पे आएंगे ई डॉट डी एस लगाएंगे, ई डी एस cos 0, प्लेन सरफेस पर एंगल 0, cos 0 होता है 1, ई को बाहर लिया, ds क्या है, उस प्लेन सरफेस का टोटल एरिया। इस प्लेन सरफेस का टोटल एरिया अपन ने कितना एज्यूम कर रखा है, कैपिटल एस, इधर भी कैपिटल एस, इधर भी। एक सरफेस का टोटल एरिया कितना हो गया, एस हो गया ये, तो ये कितना आ गया, ई इंटू एस हो गया। सो टोटल फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन सरफेस कितना, फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू प्लेन प्लस फ्लक्स ड्यू टू प्लेन। कर्व सरफेस इज व्हाट, इट इज योर 0, इट इज हाउ मच es, it is how much es, so that will become how much, it's your 2es. Clear. Now we can use the Gauss theorem over here.
तो गॉस थ्योरम से देखा जाए तो गॉसियन सरफेस के अंदर केवल इतना चार्ज इनक्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये सीट है और अगर अपन ने सिलेंडर को यहाँ पर इंसर्ट किया तो सिलेंडर का केवल इतना ही पोर्शन है जो इस सीट से क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो इस सर्कल के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, इस सर्कल के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है ये देखना है। तो भाई इस सरफेस का एरिया कितना होगा, जितना इसका एरिया, दैट इज योर कैपिटल एस। तो चार्ज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इंटू एरिया। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो गया, सिग्मा इंटू एरिया कितना हो गया, एस। तो गॉस थ्योरम से क्या आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड कितना हुआ, सिग्मा इंटू एस डिवाइड बाय क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। We have flux by this Gauss theorem and we have the flux by traditional method, that is your by using E dot ds। दोनों की आपस में फ्लक्सेस को इक्वल कर देंगे। तो सिग्मा अपॉन एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2es। एस से एस कैंसिल हो गया तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई कितना आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये बात समझ में आ रही है। इससे एक चीज थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये प्लेन शीट इस तरीके से रखी है, हमसे कोई पूछे 10 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हमसे कोई पूछे 30 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो प्लेन शीट से कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, चाहे 10 मीटर चाहे 30 मीटर, क्योंकि इस डिस्टेंस का यूज इस फार्मूले में नहीं है। इस मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन सरफेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पॉइंट जहां पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी। और ये बिल्कुल लर्न करके रखना है कि प्लेन सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी होती है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दिस न्यूमेरिकल you have to find the net electric field in the region A, B and C. We have a diagram. A diagram देखो, B को मत फोकस करो। A diagram में we have two plates जिनकी surface charge density कैसे बिल्कुल equal है। Clear? This is your plate 1 and this is your what? This is your plate 2 है। तो कह रहा है कि इसके इधर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इस रीजन पर, पूरे रीजन पर कितनी होगी, इस रीजन पर कितनी होगी। तो सबसे पहले इंडिविजुअल प्लेट की बात करते हैं। अगर हमारे पास केवल यही प्लेट होती तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, E1 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस को मैटर नहीं करती। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई पूछे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो डाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स निकालते समय वी इग्नोर द नेगेटिव साइन, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको ये। अब अगर ए पॉइंट पर देखो, ये ए पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतनी है। हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ए पॉइंट पर करना क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, उससे दूर होगी, दैट इज योर E1। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, उसके पास होगी, दैट इज योर E2। तो और ये दोनों इक्वल है, अपोजिट है, तो यहाँ पर E नेट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये 0 आ गई। ये बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर अपन यहाँ पर चले आते हैं ये, तो यहाँ पर भी कितना होगा आपका, ये देखो, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उससे दूर कितनी, E1। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगी, कितनी होगी आपकी, ये E2 होगी। और दोनों आपस में अगर इक्वल है तो अपोजिट भी है, तो कैंसिल हो गए, ई नेट की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, 0। इसका मतलब इन प्लेट्स का जो एक्सटीरियर एरिया है, आउटसाइड रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपकी, 0 होगी, चाहे इधर हो चाहे इधर। ऑन कमिंग टू बी पॉइंट, तो बी पॉइंट का मतलब ये पूरा रीजन, पूरे रीजन में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लो। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, उससे दूर, दैट इज योर E1। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, उसके पास होगी, दैट इज योर E2। तो यहाँ पर जो ई नेट निकल के आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, E1 प्लस कितना हो जाएगा, E2, दैट इज योर सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इस क्वेश्चन में केवल ये और इस रीजन पर 0 होगी, और इस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपकी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं सिग्मा की वैल्यू दे दूं तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है। और ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 24 है। ऑन कमिंग टू द प्रॉब्लम नंबर बी, अब यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों का चार्जेस सेम कर दिया। कुछ भी कर दे भाई, प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी प्लेट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले बी रीजन को देखो, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगी, कितनी होगी, ये E1। इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगी, कितनी होगी आपकी, ये E2। भाई दोनों इक्वल अपोजिट है, तो कैंसिल होके ई नेट कितना हो गया यहाँ पर आपका, ये 0 हो गया। अगर आप ए और सी वाले पॉइंट पर आते हैं, जो सी पर होगा सेम ए पर होगा ये, तो सी पर इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इससे दूर होगी, दैट इज योर E2। इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे दूर होगी, ये कितनी हो जाएगी आपकी, E1 हो जाएगी ये। तो ई नेट कितना आ जाएगा, दोनों का समेशन हो जाएगा, दैट इज योर E1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर E2। और दोनों को ऐड करने के बाद कितना आता है, यहाँ पर प्रीवियस प्रॉब्लम में देख चुके हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की उससे दूर, इसकी भी इधर जाएगी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ये निकल जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें ये? तो मैं सिंपल सा आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, और इस न्यूमेरिकल को करके तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताओ कितना है ये, या तो स्कूल या कोचिंग के ग्रुप में क्या करो आप इसको ये सेंड कर, ठीक है। आई एम गिविंग यू द 3 रीजन्स ओवर हियर, 3 प्लेट्स मेरे पास है यहाँ पर आपकी इस तरीके से ये, ठीक।
और यहाँ पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी मैं दे रहा हूँ, ये हियर इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है आपकी, -3 सिग्मा है ये, और यहाँ पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है आपकी, दैट इज योर 4 सिग्मा। आपको ये बताना इन सारे रीजन में, दिस इज योर रीजन फर्स्ट, दिस इज योर रीजन सेकेंड, एंड दिस इज योर रीजन थर्ड, एंड दिस इज योर रीजन फोर्थ। इन चारों रीजन पर मुझे ये बताओ कि इस डायग्राम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर और कितनी होगी। थैंक यू।